Good morning everyone. Myself Poonam, your business teacher from Takshila Model Senior Secondary School. Today I will start chapter 3, Management and Business Environment. So let's start. What is business environment? As we know that success of business largely depend on the suitability of the environment around it. So it is very must for the organization to adapt itself according to the business environment to survive and grow. So what is business environment? Business environment basically the sum total of all the individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. For example, if we talk about the economic, social, political, technological and other forces which operate outside a business environment are the part of its environment. Similarly, if we talk about individual consumer, competitor, government, consumer group, competitors, they are also part of the environment. Exactly all these forces are directly or indirectly influence the business environment. So it is must for the business to adapt itself according to the changing environment. So in this chapter we study about the various factors which affect the business environment or why it is important to scan the business environment. And next we proceed with features of business environment. Our first feature is totality of external forces. What is totality of external forces? External forces means which is beyond the control of the organization. So if we talk about the business is basically the sum total of all the external forces that directly or indirectly influence the working of a business system. Suppose we talk about the economic environment, social environment, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो कलेक्टिवली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. A second feature, specific and general forces. Business environment include both general and specific forces. What is specific forces? Specific forces are like investors, suppliers, customers, competitors that affect the business directly or immediately in their day-to-day working. If we talk about the general forces, like it is social, political, legal, technological that affect the business indirectly. So what we say? We say that environment consists both specific and general forces. Now our third feature, interrelated. The different elements of business environment are closely interrelated. Means if we talk about for example, अगर हम बात करें कि अगर सोशल इन्वायरमेंट का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, कहीं ना कहीं डिमांड पे, दैट कम्स अंडर द इकोनॉमिक फैक्टर्स. हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज अगर लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो कहीं ना कहीं किसकी हेल्थ कॉन्शियस हो गए, मतलब दे आर मूविंग टूवर्ड्स दी हेल्थ ड्रिंक्स. तो हेल्थ ड्रिंक्स है तो कहीं ना कहीं हेल्थ ड्रिंक की, फ्रूट ड्रिंक्स की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई. तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक फैक्टर कहीं ना कहीं दूसरे फैक्टर्स को भी इफेक्ट करता है. अगर हम एक इन्वायरमेंट की बात करें, सोशल इन्वायरमेंट की, तो यहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट ने कहीं ना कहीं इफेक्ट डाला किस पे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे. नाउ वी मूव टू दी फोर्थ वन, दैट इज डायनेमिक इन नेचर. डायनेमिक इन नेचर मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो if we talk about the environment, is also keep on changing, whether in terms of technological improvement, shift in consumer preference or new competitors adding in the market. We also talk about the social change, political change. So what we say, the business environment is dynamic in nature. A fifth feature, uncertainty. If we talk about business environment, is totally
unpredictable. It is very difficult to predict the future happening. So business environment को predict करना बहुत ही मुश्किल है, because वो बहुत ज्यादा frequently change होता रहता है. अगर हम बात करें किसी भी फैशन की, तो अगर आप भी ऑब्जर्व कर रहे हो तो फैशन कितना frequently change हो रहा है. तो अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरमेंट की, इट इज very uncertain to predict about the future happening. Now the complexity. Complexity means, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी की, इट मीन्स इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन फ्यूचर. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं. क्योंकि हमने अगर अपने फर्स्ट फीचर में क्या पढ़ा था, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. इसका मतलब है कहीं ना कहीं कलेक्टिवली जितने भी फैक्टर्स हैं वो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं. तो हो सकता है कि आप उससे प्रिडिक्ट कर पाए या ना कर पाए. तो अगर हम बात करें तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, डिफिकल्ट टास्क कि हम किसी भी इन्वायरमेंट को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाए. तो व्हाट वी से दैट बिजनेस एनवायरमेंट इज वेरी इट इज कंपैरेटिवली वेरी कॉम्प्लेक्स. नाउ मूव टू आवर 7th पॉइंट, दैट इज रिलेटिवली. द रिलेटिव कॉन्सेप्ट मीन्स, अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इट डिफर्स फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री, इवन फ्रॉम द रीजन टू रीजन. अगर हम बात करें पॉलिटिकल कंडीशन की यूएसए की, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान. तो सेम फैक्टर हैं, दोनों के अलग अलग इफेक्ट हैं. तो इट इज टोटली अ रिलेटिव. हो सकता है किसी के लिए वो पॉजिटिव इफेक्ट हो और किसी के लिए नेगेटिव इफेक्ट हो. अगर हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था शिफ्ट हेल्थ कॉन्शियसनेस का, जहां पे लोग कहीं ना कहीं हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो किसकी तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जूसेस की तरफ जा रहे हैं. तो इससे क्या होगा, जूस इंडस्ट्री के लिए तो या जूसेस कंपनी के लिए तो एडवांटेज है, बट सेम टाइम जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है उसके लिए क्या है, ये थ्रेट है. तो एक जगह पॉजिटिव हुआ और एक जगह नेगेटिव हुआ. तो व्हाट वी से, इट इज रिलेटिवली, डिपेंड अपॉन द रीजन टू रीजन और कंट्री टू country. Now our next topic, importance of business environment. Our first point, it enables the firm to identify opportunity and getting first mover advantage. What a mean of opportunity here? Opportunity means positive external trend, और we can see कोई भी change जो firm की help करे उसकी performance को increase करने के लिए, that is called अपॉर्चुनिटी. अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में बिजनेस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है. तो बिजनेस स्कैनिंग क्या हेल्प कर रहा है, बिजनेस स्कैनिंग हेल्प कर रहा है बिजनेस की कि उस अपॉर्चुनिटी को वो आइडेंटिफाई करे. अगर वो आइडेंटिफाई कर रहा है किससे पहले, कॉम्पिटिटर से पहले, तो कहीं ना कहीं वो इसका एडवांटेज ले सकता है, उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ले सकता है. सो बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प इन गेटिंग दी फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अगर हम बात करते हैं मारुति उद्योग का, तो मारुति उद्योग क्या है, एक लीडिंग कंपनी है किसमें, ऑटोमोबाइल में. स्पेशली कौन सी सेगमेंट में, स्मॉल कार. व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट कंपनी टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार. So what we say here कि if a firm scan the environment, then firm will able to get the first mover advantage. And next point is help the firm to identify threat and early warning signal. What mean of threat here? Threat mean external trend that will hinder firm परफॉर्मेंस. जैसे हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था, अपॉर्चुनिटी मतलब कोई भी पॉजिटिव चीज. सेम लाइक यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है कि कोई भी ऐसी चीज जो फर्म की परफॉर्मेंस को हैम्पर करे, तो उसको अगर हम इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर रहे हैं तो हमें उसे पहले ही पता चल जाता है. तो उससे क्या हो गया, द फर्म इज एबल टू अडेप्ट इटसेल्फ. पहले से वो तैयार है कि कोई भी सुटेबल चेंज करने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसके लिए पहले से ही रेडी है. अगर हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें काफी चीजों का आइडिया लगता है. एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं कि अगर हमें पता चलता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर, न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर होने वाले हैं, तो फर्म पहले से ही रेडी है. मे बी वो पहले से एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग कर रही है, अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर रही है, क्वालिटी इंप्रूव कर रही है, कि वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहे उस कंपटीशन को फेस करने के लिए.
Now our third point helps in tapping useful resources. If we talk about environment is the source of various resources for a business. अगर बिजनेसमैन की बात करें तो उन्हें बहुत सारे इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक फाइनेंस, रॉ मटेरियल, पावर. वो उन्हें कहाँ से मिलते हैं? वो कहीं ना कहीं उन्हें मिलते हैं फाइनेंसर से, गवर्नमेंट से एंड सप्लायर से. जो क्यों उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं रिसोर्सेज? कहीं ना कहीं उनकी खुद की एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा. किससे? एंटरप्राइज से. कहीं ना कहीं एंटरप्राइज क्या करता है? आउटपुट डिलीवर करता है एनवायरमेंट को, सर्विसेज देता है कस्टमर को, और फाइनली टैक्सेस देता है किसको? गवर्नमेंट को. सो बेसिकली पर्पस क्या है यहाँ पे? बिजनेस का पर्पस है कि जितना भी एनवायरमेंट में जो भी फ्यूचर के लिए कोई भी आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको कन्वर्ट करना इनटू द डिजायर्ड आउटपुट. सो एंटरप्राइज थ्रू द एनवायरमेंट स्कैनिंग क्या कर रहा है? डिजाइन कर पा रहा है पॉलिसीज टू अरेंज द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड कन्वर्ट द इनपुट इनटू द आउटपुट दैट इज रिक्वायर्ड बाय द एनवायरमेंट. अगर बात करते हैं, अगर बहुत समय पहले की बात करते तो उस समय क्या होता था? सीआरटी मॉनिटर्स होते थे. तो जब जितनी भी टेलीविजन इंडस्ट्रीज की कंपनीज हैं, जब उन्हें ये पता लगा कि नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके थ्रू एलईडी मॉनिटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे सीआरटी मॉनिटर्स, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? पहले ही अरेंज करना शुरू कर दिया रॉ मटेरियल्स. किसके लिए? एलईडी के लिए, ना कि सीआरटी मॉनिटर के लिए. तभी वो पहले ही उन चीजों पे काम कर पाए. So basically the purpose is to understand the business environment is to get the resources and convert them into the useful which is desired by the environment. यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी. अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हमने इम्पोर्टेंस और बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या पढ़ा, बेसिकली हमने पढ़ा कि अगर हम जो भी फैक्टर्स इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, हम उनको स्टडी करें. अगर हम उन प्रॉपरली उन इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं, उन फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं बेसिकली, तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं. सो इससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन कोपिंग विद दी रैपिड चेंजेस. एज वी नो दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटली डायनेमिक. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली अफेक्ट कर रहे होते हैं बिजनेसमैन को, लाइक हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है, बहुत सारी फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं. तो सिंपली अगर हम उनको एग्जामिन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, तो इससे हेल्प क्या होगा? वी आर एबल टू डेवलप द सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट. नाउ आवर फिफ्थ पॉइंट helps in assisting in planning and policy formulation. What is planning here? Planning simply means setting the objective and deciding the future course of action. अगर हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, एज वी नो दैट एनवायरनमेंट इज टोटली डायनेमिक, तो यहाँ पे क्या है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग, जो फैक्टर्स की स्कैनिंग कर रहे हैं, फैक्टर्स पे स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली वो किसका बेस है? प्लानिंग का. उनको बेटर अंडरस्टैंड करने से हम क्या है? वी आर एबल टू एंटर इन अ न्यू मार्केट एंड ऑल्सो एबल टू फेस दी कॉम्पिटिशन. और फाइनली यू कैन से कि इफ वी स्टडी अबाउट द एनवायरनमेंट इट हेल्प्स इन टू डील विद द फ्यूचर सिचुएशन. अगर हम बात करें इंडियन सिचुएशन की, एज वी नो दैट इंडिया में टूरिज्म का काफी स्कोप है. तो अगर आप होटल इंडस्ट्री में हैं तो आप क्या प्लान करेंगे? कि अपनी चेन ऑफ होटल्स को बढ़ाना. तो उससे एडवांटेज क्या है कि आप जो नया एंट्रेंस है टूरिज्म में, उस मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे, और डेफिनेटली इट हेल्प्स टू गेटिंग दी न्यू शेयर इन मार्केट और इंक्रीजिंग दी प्रॉफिट फॉर दी फर्म. नाउ our fifth and last point helps in improving performance. As we know that analysis and understanding of the business enterprise definitely helps the business to improve its performance. Simply, future of an enterprise is totally depend on what is happening in the environment. So, business basically observe कर रहा है किसको? environment को continuously monitor कर रहा है और adjust कर रहा है according to the चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. इससे एडवांटेज क्या होगा? इससे डेफिनेटली एडवांटेज ये होगा कि जो उसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस है वो तो इम्प्रूव होगी ही होगी, और साथ के साथ वो कॉन्टिन्यूसली सक्सीड होगा इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय तक वो सरवाइव कर पाएगा
मार्केट में. So this is all about the importance of business environment.